Good morning, student. This is Sir Devang, sir, and this is the first chapter of class 9, The Fun They Had. Margie. Margie is a character in this chapter. Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17th May 2157. She wrote, "Today, Tommy found a real book. It was an old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awful funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, and then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time." मार्गी ने उस रात अपनी डायरी में इस बारे में लिखा। पेज पे विषय था 17 मई 2157। उसने लिखा कि आज टॉमी को एक पुस्तक मिली। ये बहुत पुरानी बुक थी। मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था कि जब वह एक छोटा लड़का था, उसके दादाजी ने उससे कहा था कि उस समय था जब सभी कहानियाँ कागज़ पर छापी जाती थीं। वह पेजों को पलटते थे जो कि पीले और बहुत तहदार थे, और उन शब्दों को पढ़ना जो कि चलते हुए से प्रतीत होते थे बजाय मौन खड़े रहते थे। बहुत हंसी मजाक का विषय था। जब वे पहले के पेज को दोबारा पलटते थे तो उस पर वही शब्द होते थे जिन उन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़े होते थे। "गी," said Tommy, "what a waste. When you are through with the book, you just threw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it's go for a plenty more. I didn't throw it away." "Same with mine," said Margie. She was 11 and had seen as many tale books as Tommy had. He was 13. She said, "Where did you find it?" "In my house." He pointed without looking because he was busy reading in the attic. "What is about school?" टॉमी ने कहा, "क्या बेकार का काम है। मेरा अनुमान है जब हम बुक के साथ थे तो आपने इसे दूर फेंक दिया। हमारे टेलीविज़न के पर्दे पे 10 लाख किताबें होनी चाहिए और यह दूसरे कार्यों के लिए भी अच्छी हैं। मैं इसे कभी नहीं फेंकूंगा। मेरा भी कहना है," मार्गी ने कहा, कि वह 11 वर्ष की थी। उसने इतनी बुक्स नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी ने देखी थी। वह 13 वर्ष का था। उसने कहा, "तुम्हें यह कहाँ पर मिला?" "मेरे घर में।" उसने बिना देखे लक्ष्य करके कहा, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। छत के नीचे कबाड़ रखने का स्थान होता है, वहीं पे। वह किसके बारे में? स्कूल। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल स्कूल. What's there to write about school? I hate school. Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. मार्गी तिरस्कार से भरी हुई थी। स्कूल के बारे में लिखने के लिए उसमें क्या है? मुझे स्कूल से नफरत है। मार्गी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी, परंतु अब वह इससे ज़्यादा नफरत करती थी। टीचर्स उसे भूगोल में परीक्षा देते जा रहे थे, और तब वो बुरा करती थी जब तक कि उसकी माँ ने दुख से अपना सिर नहीं हिलाया, स्टेट के इंस्पेक्टर को नहीं भेजा। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he now knew how all right. And after an hour,
or so. The it was again large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put the homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher corrected the mark in no time. वो एक छोटा आदमी था जिसका लाल चेहरा था और औजारों और तारों का पूरा बक्सा था। वो मार्गी पर मुस्कुराया और उसे एक सेब दिया। तब टीचर को दूर ले गया। मार्गी को आशा थी कि वह नहीं जानता होगा कि उसे दोबारा कैसे स्टैब्लिश करना चाहिए, परंतु वह जानता था कि उसे किस प्रकार ठीक करना है। और 1 घंटे के पश्चात वह दोबारा बड़ा, काला और भद्दा हो गया, एक बड़े पर्दे के साथ जिस पर उस सभी लेसन्स दिखाई दे रहे थे, क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। वह इतना बुरा नहीं था। मार्गी जिस भाग सबसे ज़्यादा नफरत करती थी वह एक दिया हुआ स्थान था जहां वह अपना होमवर्क और एग्ज़ाम्स के कागज़ों को रखती थी। वह हमेशा उन्हें गुप्त भाषा में लिखती थी। जब वह 6 साल की थी तब उसने उसे पढ़ाना सिखाया और अध्यापन चिन्ह को बिना कोई समय लिए ज्ञात कर लेता था। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too big. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year-old. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Margie's head again. Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for a nearly month because the history sector and the blanked out completely. So she said to Tommy, "Why should anyone write about school?" निरीक्षक समाप्त करके मुस्कुराया। उसने मार्गी के सिर को थपथपाया। वह उसकी माँ से बोला कि जोन्स, यह छोटी लड़की की गलती नहीं है मिसेस जोन्स। मेरा सोचना है कि ज्योग्राफी थोड़ा जल्दी व्यवस्थित कर दिया गया है। ऐसी चीज़ें कई बार घटित होती हैं। मैंने इसे औसत 10 वर्षीय स्तर पर धीमा कर दिया है। वास्तव में उसकी प्रगति का पूरा तरीका सेटिस्फैक्ट्री है, संतोषजनक है। और उसने दोबारा मार्गी के सिर को थपथपाया। मार्गी निराश थी। उसे उम्मीद थी कि वह टीचर को हमेशा के लिए दूर लेके जाएंगे। वे टॉमी के टीचर को करीबन 1 महीने के लिए एक बार दूर ले जा चुके थे, क्योंकि हिस्ट्री का विभाग पूरी तरह खाली हो चुका था। इसलिए उसने टॉमी से कहा, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आईज बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड. This is the old kind of a school that they had hundreds and hundreds of years ago, he added loftily, pronouncing word carefully. Centuries ago. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She had read the book over his shoulder for a while, then said, "Anyway, they had a teacher, sure. They had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. A man? How could a man be a teacher?" "Well, he just told the boys and girls things and have them homework and ask them questions." टॉमी ने उसकी तरफ नज़रों से देखा। क्योंकि वह हमारी तरह का स्कूल नहीं था, मूर्ख। वह प्राचीन प्रकार का स्कूल था जो कि सैकड़ों वर्ष पुराना था। उसने गर्व के साथ जोड़ा शब्द का उच्चारण सावधानीपूर्वक किया। हजारों वर्ष पुराना। मार्गी को आघात हुआ था। अच्छा, मैं नहीं जानती कि इतने समय से किस प्रकार के स्कूल रखते हैं। उसने कुछ समय के लिए अपने कंधों को ऊपर लगा किताब को पढ़ा, तब कहा, किसी प्रकार से एक टीचर रखते थे। यकीनन वे एक टीचर रखते थे, परंतु वह नियमित टीचर नहीं था, वह एक आदमी था। A man isn't smart enough. Sure he is. My father knows as much my teacher. He knows almost as much. I betcha. Margie wasn't prepared to dispute
that she said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. Tommy screamed with laughter. You don't know much. Margie, the teacher didn't live in house. They had a special building and all the kids went there and all the kids learned the same thing. Sure, if they were the same age. एक आदमी कैसे एक टीचर हो सकता है? ठीक है, तभी उसने लड़के लड़कियों को सोचने के लिए कहा। उन्होंने होमवर्क देने और उसने प्रश्न पूछने के लिए कहा। एक आदमी हद से ज़्यादा चालाक नहीं है, यकीनन वह है। मेरे पिताजी टीचर से ज़्यादा जानते हैं। मैं शर्त लगाता हूँ कि वो लोग बहुत अच्छा जानते हैं। मार्गी उसके साथ सहमति के लिए तैयार नहीं थी। उसने कहा कि मैं नहीं चाहती कि अजनबी मेरे घर में मुझे पढ़ाए। टॉमी हंसने लगा। मार्गी, तुम अधिक नहीं जानती। टीचर घर में नहीं रहते, वे एक इमारत में रहते थे और सभी बच्चे वहाँ जाते थे और सभी बच्चे एक जैसी चीज़ें सीखते, यकीनन अगर उनकी आयु एक समान है। बट माई टीचर सेज ए टीचर हैज़ टू एडजस्ट टू फिट द माइंड of each boy and girl teachers, and that each kid has to taught differently. Just the same, they didn't do it, and then if you don't like it, you don't have to read the book. I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. They weren't even half finished when Margie's mother called. Margie's school. Margie looked up. Not yet, Mama. Now, said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. Margie said to Tommy, can I read the book some more with you after school? लेकिन मेरी माता जी कहती हैं कि एक टीचर व्यवस्थित होता है प्रत्येक लड़के लड़कियों को दिमाग को ठीक करने के लिए। जो उसने पढ़ाया उसे प्रत्येक बच्चों को अलग अलग सिखाने के लिए। तब केवल एक जैसा वे इस तरीके से नहीं कर सकते। अगर तुम इसे पसंद नहीं करते तुम उसे पढ़ने के लिए नहीं रखते। मार्गी ने एकदम से कहा, मुझे नहीं कहना मुझे इसे पसंद नहीं करती, मैं इसे पसंद नहीं करती। वह इन मजाकिया स्कूल के बारे में पढ़ना नहीं चाहती थी। वे अभी तक आधे समाप्त नहीं हुए थे जब मार्गी की माँ ने बुलाया। मार्गी स्कूल। श्रीमती जोन्स ने कहा, अब और वह समय टॉमी के लिए भी है। मार्गी ने टॉमी से कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ स्कूल के बाद इस बुक्स को कुछ ज़्यादा बार पढ़ सकती हूँ? Maybe, he said nonchalantly. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. Margie went to the schoolroom. It was right next to her bedroom, where the mechanical teacher was waiting for her. It was always on the same time every day except Saturday, Sunday, because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. The screen was lit up and said, today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. ध्यान देते हुए टॉमी ने कहा, शायद। वह सीटी बजाता हुआ दूर चला गया। धूल भरी पुरानी किताबें उसके हाथ में नीचे मुड़ी हुई थी। मार्गी स्कूल के कमरे में चली गई। वहाँ उसने शयन कक्ष की बाईं ओर से अगला था और मैकेनिकल का टीचर उसमें था। वह इंतज़ार कर रहा था। वह शनिवार और रविवार को छोड़कर रोज़ उसमें हमेशा, क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि छोटी लड़की बेहतर सीखेगी अगर वो नियमित घंटों से सिखाएंगे। पर्दा चमकने लगा और कहने लगा, आज का अंक गणित का जो लेसन है अंशों के बराबर जोड़ने पर है। कृपया करके कल अपना होमवर्क उचित स्थान पर भरें। Margie did so and sighed. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandmother was a little boy. All the kids from this whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned same things on they could help one another on the homework and talk about it. The teachers were people. The mechanical teachers was flashing on the screen. When we add fractions 1 by 2 and 1 by 4, Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. मार्गी ने एक चिन्ह के साथ वैसा किया। वो सोच रही थी कि पुराने स्कूल के बारे में जो वे रखते थे जब उसके दादा दादी एक छोटा लड़का था, पर उसके साथ सभी बच्चे आते थे। स्कूल के आंगन में हंसते चिल्लाते थे, स्कूल के कमरे में इकट्ठे बैठते थे, दिन के आखिर में इकट्ठे घर जाते थे। वो एक जैसी चीज़ें सीखते थे, परंतु होमवर्क एक दूसरे की सहायता से कर सकते थे, इसके बारे में बात करते थे। और टीचर आदमी थे, यंत्र जो मशीन रूपी टीचर पर्दे प्रकाशित कर रहा था। जब हम 1 by 2 1 by 4 को जोड़ते हैं, मार्गी पुराने समय में बच्चों को इस प्रकार के
प्रेम करना चाहिए था के बारे में सोच रही थी। उन्होंने जो आनंद प्राप्त किया था उसके बारे में सोच रही थी। ओके स्टूडेंट, दिस वाज द चैप्टर नेम द फन दे हैड, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बिहाइव. You have already have been taught this chapter and you have to make the question answer of this chapter in your fair copy. Thank you very much.